Good evening, you all. First of all, I would like to regret for scheduling this session late evening. After traveling near about more than 12 hours, I just reached at Pune, and we are here to discuss one of the most important concern in today's education system, that is assessment in line with NEP 2020. I would like to congratulate Gautam Buddha Teachers Training College, Hazaribagh, their faculty members, their principal, for taking initiative to organize such an important FDP, which will create an impact on the implementation of National Education Policy 2020, to understand actually what is expected through NEP 2020. At the same time, I would like to thank you, my friend, Dr. Sandeep Patil, for introducing me for this session. So I would like to request our host to allow me to share my screen. Can you request again, sir, please? Host disabled the attendance screen sharing. Attendance screen sharing is disabled, so it's difficult to share my screen. So could you Can you please request once again, or I make you host, sir? Yes, you can make me a co-host so that I can share my screen. Actually, I don't have the option for co-host. There is technical error, I think. So I want to make you host, sir. So how can I share my screen with you all? If you will be host, sir, then you can share. I'm not the host of this meeting, no? I'm making you, sir. So while they are doing their technical work, let me discuss with you all about the assessment in line with National Education Policy 2020. Before starting the session, I would like to know your opinions about the assessment. What do you think about the assessment? Instead of making this session only passive, let's make this session interactive session so that everyone can understand, everyone can participate, everyone can share their views. I would like to know your views about the assessment. Sir, assessment is the process by which we periodically check the growth in the knowledge of the students. Okay. Anyone else who would like to share their views about the assessment? Is my screen visible to you all? Yes, sir. It's okay. Clear. Okay, Uttam Kumar ji, thank you for giving me a response. I would like to conduct this session in that way where I would like to take your opinions. At the same time, we need to interact more. Instead of making this passive session, let's make it interactive session. So let's start the session by showing one picture. Though you are not from, most of you, I feel that most of you are not from the Marathi background. You can understand the meaning of this picture. So observe this picture and tell me what you observe in this picture. What is your idea after observing this picture about the education? So is there anyone who is going to share his or her views about this picture? Is this
the representation of today's education system? सर वो प्रेशराइज कर रहे हैं उसे इंजीनियर बनने के लिए। जी। In which language you would like to feel comfortable? You can speak or you can express within that language. आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरे पिक्चर में प्रेशराइज कर रहे हैं। पहले पिक्चर में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है? सर वो एक्चुअली मराठी लैंग्वेज है तो वो समझ नहीं आ रहा सर स्क्रिप्ट। Language doesn't matter. What you observe in this picture? सर वो सर आई थिंक स्टडी का बर्डन है सर, स्टडी का बर्डन है। ये एक मशीन है, मशीन में आप किसी को डालिए और नीचे देखे एक जैसे सारे बच्चे आ रहे हैं। यस सर। तो हम वही सोच रहे हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को हम एडमिट कर दे। एडमिट करने के बाद हमें सभी लोग एक नंबर के ही चाहिए, सभी लोग हमें डॉक्टर या इंजीनियर ही चाहिए। इसलिए एडवर्टाइज में भी ऐसे हो रही है कि ये हमारी ऐसी फैक्ट्री है जहां डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ये स्कूल की सिचुएशन है फर्स्ट पिक्चर में। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी जो जो चाहिए, मैंने आपको स्कूल में एडमिशन दे दिया, मैंने आपको जितने रेफरेंस बुक्स चाहिए थे, जितने ट्यूटोरियल चाहिए थे, जितने वैल्यूएडेड कोर्सेज चाहिए थे, सारी चीजें दे दी, जितने रिसोर्सेज चाहिए थे उतने सारे दे दिए। अभी आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। और शिक्षा तो इसी तरह से जा रही थी, और शिक्षा इसी तरह से अभी भी आप कहीं जगह पे देख रहे होंगे। बिफोर making this statement as a general statement, let me ask you one thing. What is the purpose of education according to you? आपके विचार से शिक्षा का हेतु क्या है? सर सोशल रिफॉर्म आई थिंक। सोशल रिफॉर्म, ओके। बाकी और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपके यहाँ, कोई भी एक जवाब गलत या सही ऐसा नहीं है। हमें एक दूसरे की विचारधारा जाननी है। विचारधारा, आपकी जो धारणा है शिक्षा के प्रति, वो जाननी है, और उसके बाद हमें डिस्कशन करना आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, शिक्षा का हेतु क्या है? सर हमें लगता है सर कि सबसे पहले एक शिक्षा में एक अच्छा इंसान बनने के लिए नॉलेज देना चाहिए। बाकी बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो। नहीं, बच्चों में देखना चाहिए कि क्या शिक्षा में किस चीज में बच्चे आगे जाना चाहते हैं। किसी अच्छे एजुकेशन में अगर उनका हॉबी है तो उसमें आगे बढ़ने देना चाहिए, ना कि अपना हॉबी बच्चों में देना चाहिए। जी, जूही जी ने जो रिस्पांस दिया है, सबसे बड़ी बात है, हम डॉक्टर निर्माण करें, हम इंजीनियर निर्माण करें, हम शिक्षक निर्माण करें, हम उद्योजक निर्माण करें, हमें जो निर्माण करना है वो तो कर सकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें इंसान निर्माण करना चाहिए, हमें मनुष्य निर्माण करना चाहिए। अभी यही हो रहा है कि एजुकेशन अभी मतलब कि डॉक्टर इंजीनियर तो बन जा रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं वो, और इसी की वजह से देश पिछड़ा। हाँ सर। So basically, ये सारी चीजें process. It's basically the modulation of thought process. Thought process एक बहुत ही important चीज है जो education ही हमें दे सकता है। जी बिल्कुल सही। इसीलिए हम कहते हैं कि बोलते समय जनरल लैंग्वेज में हम ऐसे कहते हैं कि अगर कोई बुरी बात कर रहा है, कोई हमें लॉजिकल बात नहीं कर रहा, कोई एक जो पूरी बात है उसके जड़ तक जाकर बात नहीं कर रहे, तो हम बात करते हैं कि अरे गवार जैसे बात क्यों कर रहे हो। इसका मतलब एक ही है कि थॉट प्रोसेस भी हमें एजुकेशन से डेवलप करनी चाहिए। ये सारी जो बातें आपने कही थी, ये तो सच में एजुकेशन का पर्पस है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हम इतिहास में थोड़ा सा देखेंगे तो हमें एक विष्णु पुराण का एक श्लोक हमें रेफरेंस में लेना है। विष्णु पुराण के इस श्लोक में कहा गया है कि तत्कर्मयन बंधाय साविध्याय विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। आज के इस सेशन को शुरुआत करते समय मैं डायरेक्ट विष्णु पुराण के 17वें अध्याय के श्लोक में गया हूं, क्योंकि वहां शिक्षा के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी है, जो आज के समय में हमें बहुत ही विस्तृत से शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, शिक्षा किसे कहते हैं, इसका विवरण किया गया है। देखिए, इस श्लोक का अर्थ यही है, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे,
आज हम देखिए हमारी विद्या हमें मुक्त कर रही है क्या? हम जितने पढ़ रहे, जितने कुछ डिग्रियां ले रहे, जिसे हम सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड पर्सन कह रहे हैं, सभी लोग मुक्त हो चुके हैं क्या? या हर किसी को अपने अपने कंपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं? तो अगर क्रिएट किए तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनके पास विद्या है, क्योंकि विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रिया और अन्य सभी अध्ययन मात्र कारीगिरी है। आज के इस संदर्भ में अगर हम देखें, जो कर्म हमें बंधन में ना बांधे वही कर्म है, लेकिन हम देखिए कैसे कर्म की संकल्पना जानते हैं। आज सभी लोग यहाँ ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं, शायद आप में से भी कोई होंगे जिनको कहा गया होगा कि अगर आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट लाने के लिए कोई सो के सेशन सुन रहा होगा, किसी ने केवल ऑन करके बैठे होंगे, कोई हमारी जो बहन है वो बहन कुछ काम करते करते सुन रही होगी। हम बंधन से जब मुक्त होंगे वही कर्म है। अगर आप अभी 1-2 घंटे का ये जो सेशन आप कर्म समझ रहे हैं, तो बंधन में ना बांधे हुए उसको सुनना चाहिए, उसमें हमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। और विद्या वही है जो मुक्त करे। अगर विद्या हमें मुक्त नहीं करती है तो वो सारा जो हमारा अध्ययन है मात्र कारीगिरी है। क्या आप इससे सहमत है? क्या आप इससे सहमत है? यस सर, वेरी ट्रू सर। अगर यही बात है तो ये जी बात, सर। ये जो बात है, ये बात हमें अभी समझ में आ रही है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो पूरा जो नींव थी, वो पूरी नींव जो खराब हो गई, आप सभी लोग जानते हैं। उस व्यक्ति का मुझे नाम लेना भी अभी इस समय पे आप जैसे विद्वान लोगों के सामने अच्छा नहीं लग रहा। 1835 में कोई इंग्रज अधिकारी आया, उसने कहा कि मेरे लिए तो ये सारे लेबर क्रिएट करने मुझे, तो मुझे पूरी शिक्षा की व्यवस्था डिस्टर्ब करनी है, पूरी व्यवस्था मुझे चेंज करनी है। और उसने जो पूरी व्यवस्था चेंज की, उसका परिणाम हम आज तक देख रहे हैं। क्योंकि आज तक हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं, वो एग्जाम के लिए कर रहे हैं। आज तक हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कुछ तो सर्टिफिकेट मिले उसलिए कर रहे हैं। आज हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि अच्छा, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में और चीजें भी, कोई चीजें देखनी है वो अभी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन कभी आपके मन में प्रश्न आता है क्या, ये एग्जाम शुरू कब से हुई होगी? ये किसने लाई ये एग्जाम? कुछ है आपके मन में कुछ इसके बारे में विचार? अच्छा, आप जब मुझे आपकी प्रधानाचार्य मैडम ने कहा कि सर आपको सेशन लेना है, सेशन लेते समय असेसमेंट इन लाइन विद एनईपी 2020 ऐसा टॉपिक मुझे दिया गया, तो मैंने सोचा कि चलिए असेसमेंट ये कब से शुरू हुई थी, ये एग्जाम जो आई है वो कब से आई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ गई, हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। हम सभी लोग जानते हैं वैदिक पीरियड में क्या था, ओरल रिसाइटेशंस थे, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस था। गुरु अपने जो अध्ययनार्थी थे उनको इनफॉर्मली ऑब्जर्व करते थे, वो किस तरह से कार्य कर रहा है, उस पे उसकी स्किल्स देखते थे, और जो ओरल रिसाइटेशन था उसको महत्व था। उसके बाद 5th सेंचुरी बीसी में संघाज की स्थापना हुई। संघाज में क्या हुआ कि संघ में एक साथ बैठकर ग्रुप कलेक्टिव असेसमेंट किया जा रहा था, और ये असेसमेंट का थोड़ा सा चेंज हो गया फिर मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड में शिक्षा जो है वो मकबरा में, मदरसा में देने के लिए शुरुआत हो गई, और वहां एक्सटर्नल एजेंसी कोई नहीं थी। जो आप कहे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही, जितना आपको ज्ञान दिया जा रहा है वही वही तक सीमित रहे। और उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि वुड्स डिस्पैच आ गया। हिस्ट्री में तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, उसमें कहा गया है कि असेसमेंट फॉर लेबर मेकिंग चाहिए। आपको कितना विचार करने की क्षमता विकसित हुई ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू मैटर अस, the things will matter is how we are going to create the labors for our government. And after that 1857 में फर्स्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन संपन्न हुई। फर्स्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम 1857 में संपन्न हुई। हम तो सभी लोग 1857 हिस्ट्री में अलग संदर्भ में जानते हैं कि जो उठाव हुआ था उसके बारे में हम जानते हैं। फिर सैडलर कमीशन के बारे में
हम रेफरेंस ले सकते हैं कि वहां सेकेंडरी एग्जामिनेशन शुरू हो गई। और आपको बताते हुए मुझे आनंद बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रॉम सर्टिफिकेशन टू इम्प्रूविंग इन लर्निंग 1968 से लेके 1986 तक प्रयास किए गए, कोठारी कमीशन हो, मुदलियार आयोग हो, उनके माध्यम से ये कोशिश की गई कि एग्जाम में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए। यस, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? Sir, can you make me a host, sir? My faculty is waiting in waiting room, sir. I mean, Gautam Buddha Teachers Training College, sir. Possible, sir? हेलो, Hello, sir. हाँ, यस, Sir, can you make me host, sir? Actually, few participants or our faculty are waiting in the waiting room, sir. गौतम बुद्धा टीचर्स। Yes, sir. I'm trying, but it's difficult to make you as a host. Huh? I'm trying it. Sir, you may go in three dots, Gautam Buddha Teachers Training College, and you can make me host, sir. Please. सर ये पॉसिबल हो पा रहा है? जस्ट मिनट। ओके सर। हाँ, मैं दूसरे यहाँ से भी ज्वाइन हुआ था ना। यस सर। आई वाज ट्राइंग दैट। Is it okay now? Yes sir, okay. Thank you so much sir. I'm sorry to disturb you, sir. So can we continue? Yes sir, yes of course sir. ओके, तो ये सारी चीजें हम देख रहे थे कि हिस्ट्री ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा धोरण जो आया है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो असेसमेंट के बारे में हमें जानकारी देते हैं, असेसमेंट के बारे में हमें अच्छे से कुछ इनपुट्स मिलते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कहा गया है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट assessment should give the focus on formative assessment. At the same time, there are some provisions which are going to talk about the reducing the emphasis on board exam. At the same time, the integration of technology is expected in assessment. It is clearly directed in the National Education Policy 2020. And most important,
holistic assessment is expected in the National Education Policy 2020. Flexibility in the assessment is expected. At the same time, we all are aware about the continuous comprehensive evaluation. That thing is expected within the National Education Policy 2020. And at the same time, 360-degree assessment and assessing life skills and values. These things are expected in National Education Policy 2020. So let's discuss all these things one by one. Before that, I would like to share with you two pictures. Just go through these two pictures. आपको क्या दिखाई दे रहा है? Are you with me? Yes, sir. Okay, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? आप मेरे साथ है तो मुझे बताइए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है दो पिक्चर में? Yes, I'm waiting for your responses. आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल दिखाई दे रहा है? Yes, sir. I think Yes. Yes, sir. learning process, sir, develop. ओके, तो मुझे बता, देखिए आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? एक ओल्ड स्कूल है, एक न्यू स्कूल है। ओल्ड स्कूल में आपको दिखाई दे रहा है कि टीचर एज ए टास्क मास्टर। हम सभी लोग जानते हैं कि हमें इसी तरह से पढ़ाया गया है, इसी तरह से बताया गया है कि हमें आपने यही बताई थी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी बताइए। Yes, you would like to share something? आप में से कोई बोलना चाहते थे क्या? ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल मेथड, ओके। अच्छा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ओल्ड स्कूल में टीचर एज ए टास्क मास्टर, जो आपको हर बार बताते थे कि आपको इसी तरह से पढ़ना है, मैं जो बोलूं वही सही है, मैं जो बोलूं वही आपको सुनना है। और बच्चे देखिए कैसे बैठे हैं, रो एंड रो। आपको पता है ये क्यों बैठे हैं ऐसे? कोई आपकी इसके बारे में कोई सोच है या कोई ऑब्जर्वेशन है? Good evening, sir. गुड इवनिंग। I am Dr. Meera Kumari, Assistant Professor, Gautam Buddha Teachers Training College, हजारीबाग। सर, इसमें ओल्ड स्कूल में दिखाया जा रहा है कि पुराने जमाने में जो शिक्षक हुआ करते थे उसमें वो स्टूडेंट्स के साथ बैठ कर के वैसे कुछ विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं। एक और मिनट, मैं आपको उनसे एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। क्या ये पुराने जमाने में था या आज भी चल रहा है कहीं? नहीं सर, आज भी चल रहा है, बट अभी थोड़े स्किल में जो है सर चेंजेस आ गए हैं टीचर्स के। और हाँ सर, और एक दूसरे जो पिक्चर है सर उसमें न्यू स्कूल का मतलब अभी नया हम इसी के बारे में पहले इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रो एंड रोवर सिटिंग अरेंजमेंट है। कोई मुझे बता सकते हैं कि ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट क्यों है? हम सभी लोग सर वो फर्स्ट वाले पे एजुकेशन ले रहे हैं एंड सेकंड वाले पे ग्रुप डिस्कशन टाइप का हो रहा है सर क्लासेस। बिल्कुल सही है। इसलिए so that कोई भी ग्रुप डिस्कशन ना हो सके, बच्चे आपस में बात ना कर सके। जी बिल्कुल सही। हम कंपेयर बाद में करेंगे, ग्रुप डिस्कशन ना कर सके, आपस में बातें कर सके। आप जानते हैं ये व्यवस्था किस लिए निर्माण की गई? 1835 में जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, उसके बाद ऐसे कहा गया कि इस तरह से आपको पूरा सीधा ही देखना है, ना इधर ना उधर, आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन के लिए सर, आपको आपकी क्रिएटिविटी यूज करनी नहीं है। और सेंटर पॉइंट में ऐसे सिस्टम में कौन होता है? टीचर। ऐसे सिस्टम में सेंटर पॉइंट पे टीचर होते हैं। और टीचर क्या कहते हैं कि पूरे 35 मिनट हो या आप जैसे तो विद्वान लोग 1-1 घंटे का लेक्चर लेते हैं, तो 1 घंटे तक केवल मुझे देखना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, केवल आपको मुझे देखना है और मुझे फॉलो करना है। और टास्क कौन सा दिया गया है? ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो नोट डाउन करो और वो फिर से अपनी कॉपियों में लिख लो, और कॉपियों में लिख कर क्या करो? सर्कुलर ऑफ फाइल।
आप मुझे होमवर्क की ये फाइल सबमिट करो, आप मुझे असाइनमेंट की ये फाइल सबमिट करो। आप इससे सीखे क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम बात करेंगे वो नए स्कूल के बारे में, जहां हर बार एक वर्ड आप सही कई बार सुन चुके होंगे कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय फैसिलिटेटर? Facilitator means sir कि But the person who provides various facilities to the students according to their needs and interests. Which kind of facilities are expected? Water drinking facility, like that facility, physical facilities? No, sir. Facilities related to teaching and learning. Facilitator is simply one who creates n number of learning experiences within his or her teaching practices. He or she need to create, or he or she need to use the various learning experiences while explaining any content. What are the learning experiences? By telling some information, by showing some pictures, by asking some questions, by asking them to work in a group together for achieving common goal. So all that kind of learning experiences are there. You know better than me what are the learning experiences. So the facilitator or the teacher who knows as a facilitator is that teacher who creates the ample number of learning opportunities within his or her classroom. And here more importance is given to collaboration. Instead of row and row work, collaboration is there. Collaboration as a group discussion, collaboration for working on a common project, collaboration as a discussion on various issues and concerns. And at the same time, if we work like this, if we learn like this, it will provide us opportunity to create the authentic tasks instead of repetitive tasks. Here we will get opportunity to create the authentic tasks, and at the same time जो हम काम कर रहे हैं उसको हम कुछ तो ह्यूमन टच दे सकते हैं। इसीलिए हमें इस तरह की शिक्षा व्यवस्था लानी है। अगर आपको अभी पूछा जाए कि आपके क्लास में आप जहां पढ़ रहे हैं वहां कौन सा स्कूल आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, ओल्ड या न्यू, तो आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली न्यू स्कूल सर। ये और ये न्यू स्कूल अगर हमें बनाना है, न्यू स्कूल की तरफ हमें देखना है, तो फिर हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें असेसमेंट के बारे में क्या कहा गया है। करणवीर सिंह जी ने भी कहा कि न्यू स्कूल, मुझे पूरी गारंटी है कि सभी लोग चाहेंगे कि ऐसे ही हमारी क्लास होनी चाहिए, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ टीचर। तो हमें टीचर के तौर पर क्लासरूम हमें बनानी चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो इसका अगर संदर्भ देखें तो एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी थी वो हम सभी लोग जानते हैं। अभी मैंने 2-3 बार रेफरेंस दिया आपको कि मैकॉले का जो पूरा सिस्टम, उसने एजुकेशन सिस्टम की जो धज्जियां उड़ाई है भारत की, वो तो कहने लायक है नहीं। उस समय किस तरह की इवैल्यूएशन सिस्टम थी आप सभी लोग जानते हैं। मैंने जब थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि चलो इंडिपेंडेंस के पहले असेसमेंट किस तरह से किया जाता था वो देखे। तो आपको पता है 1947 तक भी क्वेश्चन पेपर ऐसे ही थे, ब्रॉड आंसर टाइप क्वेश्चन, एसे टाइप क्वेश्चन, एसे लिखो बस। आज भी हम वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम किस अभी सिचुएशन में रह रहे हैं, हम कौन से बच्चे से हम संवाद कर रहे हैं, और ऐसे समय में हमारी इवैल्यूएशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए। और इवैल्यूएशन सिस्टम केवल टीचर्स के लिए नहीं चाहिए, वो स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए। केवल ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट का दिन आ गया, रिजल्ट हाथ में आ गया और हमारा असेसमेंट हो गया। ये चीजें अगर लास्ट में आपको असेसमेंट की एक कोई शीट मिल रही है, कोई एक आपको पेज मिल रहा है, तो वो पेज आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक पेज ही होता है। मुझे कई बार पूछा गया है कि आप उसको एक पेज ही कहते हैं, डिग्री कहते हैं, डिग्री का एक पेज कहते हैं, तो डिग्री, इस पेज की डिग्री कैसे बनती है? मैं हमेशा कहता हूं अगर उस पेज को अहंकार जुड़ गया तो वो डिग्री बन जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूं, मैंने नेट क्लियर किया है, मैंने सेट क्लियर किया है, मेरा पीएचडी अवार्ड हुई है। जब हम ये अहंकार के साथ उस सर्टिफिकेट को दिखाते हैं तो वो डिग्री बन जाती है, नहीं तो केवल एक पेज है वो।
लेकिन उस पेज से भी आगे जाना है। इसीलिए हमें गुरुकुल से लेके आज के जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्कूल्स बने ना, उसका संदर्भ लेना जरूरी है, जहां हम देखते हैं कि गुरुकुल में असेसमेंट कैसे होती थी, जो अभी हमने बात की। आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तो सेशन आगे नहीं जा सकता, और जब तक मुझे सभी से अच्छे से रिस्पांस नहीं आएंगे तो हम ये हमारा सेशन बहुत देर तक भी चलेगा। सो अगर आप सभी को जल्दी भोजन करना है तो आप जल्दी से जल्दी आप मुझे ज्यादा से ज्यादा संवाद करने की कोशिश कीजिएगा। गुरुकुल में किस तरह की असेसमेंट व्यवस्था थी? सर वहां पे जाकर रहना पड़ता था, उसके बाद वहां पे शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती थी सर। बिल्कुल सही, वहां पे जाके आपको रहना पड़ता था, वहां जाकर रहने के बाद फिर वहां असेसमेंट होता था। और वहां ऐसे असेसमेंट नहीं होता था, अभी टर्म फर्स्ट है सभी लोग आ जाइए, टर्म सेकंड है आप सभी लोग आ जाइए, फिर सर सभी कुछ को ओरल असेसमेंट और कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे। स्किल को महत्व था, और टीचर बताते थे क्या कि चलिए मैं अभी आपका असेसमेंट कर रहा हूं। इनफॉर्मल असेसमेंट ज्यादा था, बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चे कैसे किस तरह से सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या थी, गुरु को भी एक महत्व था कि गुरु अपने शिष्य को चुन सकते थे, और वाइस वर्सा शिष्य भी अपने गुरु को चुन सकते थे। और ऐसे सिचुएशन में फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा से ज्यादा हो रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद सेकेंड पार्ट है रिड्यूसिंग द एम्फेसिस ऑन बोर्ड एग्जाम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अभी बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है घर में। उससे पहले जिस घर में, जिस परिवार में बोर्ड के लिए अपीयर करने वाले बच्चे, उस घर की थोड़ी सी सिचुएशन सामने लाइए, एटमॉस्फेयर कैसे होता है। ऐसे में मेरे एक मित्र के घर पे गया था, घर में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन उस समय बहुत ही चिंता थी, जनवरी फरवरी का समय था। मैंने कहा कि अरे हुआ क्या है, कुछ गलत हुआ क्या, कहीं कुछ गलत चीज हुई है या कुछ दुखद ऐसी कोई वार्ता है? तो उसने कहा कि नहीं, बेटे की एग्जाम आई है, वो 10th में है, और हम सभी लोगों ने 1 महीने से घर में टेलीविजन सेट बंद कर दिया है, हम किसी से ज्यादा जोर से बातें नहीं करते, बच्चा अपने रूम में रहता है और वो पढ़ाई करता है। क्या आपने ऐसा माहौल कहीं देखा है? देख रहे हैं इसको? क्या आपने ऐसा माहौल कहीं देखा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा फिलहाल। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि घर में कैसी सिचुएशन रहती है। अगर कोई 10th में या 12th में है तो टेंशन वाली सिचुएशन रहती है। नहीं, सभी लोग कहते हैं कि नहीं, बोर्ड का एग्जाम है, जरा ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को क्या ये कहा? सर काफी घरों में देखा है मैंने कि ऐसा सिचुएशन होता है आसपास। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं बच्चे को, सोशल मीडिया से या फिर लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, स्टडी पे बार बार फोकस करने को कहते हैं। और किस इसीलिए तरह इसीलिए ठीक है, कुछ बच्चों का तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है। बिल्कुल सही। और हर किसी को ये कहा जाता है कि 10th इज योर करियर डिसाइडर होगा, 10th में तुम्हें अच्छे मार्क मिलेंगे तो आपका करियर अच्छा होगा। फिर 10th के बाद बच्चा जब 12th में जाता है तो वही चीज दोहराई जाती है कि 12th में अगर अच्छे मार्क्स मिल गए तो तुम्हारा करियर सेट हो गया। फिर कहते हैं कि अभी तुम्हें ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिला है, यहां तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा करियर सेट है। फिर उसके बाद पीजी है, पीजी के बाद जॉब है, अलग अलग लेवल पे एक ही बात कही जाती है कि यहाँ तुम्हारा करियर सेट होगा। ऐसे कभी किसी एग्जाम से करियर सेट हो सकता है क्या? तब तक बच्चे मतलब काफी बड़े हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं वो। और हमने कितनी बार हमने न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी है कि 2 करोड़ का पैकेज है और सुसाइड कर ली। यस सर, यस सर। कभी आपने ये बात सुनी है क्या कि रोड पे जो काम करता है उसको हर दिन अपने पेट के लिए वो संघर्ष करता है, पेट के लिए वो काम करता है? कभी आपने ये देखा है क्या कि वो बहुत ही प्रेशर में आके कुछ चीजें, कुछ अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। हम जो पढ़े लिखे वाले लोग हैं वही बात कर रहे हैं। और ये बात ना हो सके इसीलिए
In the National Education Policy 2020, it is clearly mentioned that there should be a less importance for the board exam, and for that purpose reducing the emphasis on board exam, यही चीज हो रही है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से हमें क्या पता चल रहा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी आ रही है सभी लोग उसके लिए। अभी आपने जैसे कहा, आप सभी लोग उससे बिल्कुल एग्री है। फियर ऑफ फेलियर होता है बोर्ड एग्जाम में, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। और सभी को हर बार यही बताया जाता है कि करियर डिसाइडर है, तुम्हें बहुत ही स्टडी करनी है। और ये जो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, चेयर के साथ बंधा हुआ, ये अपेक्षाओं के साथ बंधा हुआ है। माताजी पिताजी अलग चाहते हैं, टीचर अलग चाहते हैं, फ्रेंड्स अलग चाहते हैं, फिर हमें 3 इडियट्स की याद आती है कि बनना कुछ और चाहते हो, प्यार किसी और से, शादी किसी और से कर रहे हो। हमें जो बनना चाहिए। सर मैं तो कभी कभी अपने कॉलेज में बच्चों का स्ट्रेस टेस्ट करती हूँ, तो 10 में से 8 बच्चों के पास स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है। फॉर दैट पर्पस बाकी 2 ही बच्चे फ्री रहते हैं। सर बॉय और गर्ल्स दोनों ही, गर्ल्स ज्यादा होती हैं क्योंकि उनको घर का भी काम देखना होता है और वो लाइफ में आगे भी जाना चाहती हैं। तो गांव, थोड़ा सा गांव, क्योंकि चितरपुर कॉलेज चितरपुर थोड़ा गांव तरफ है, गांव तरफ के गांव ही जैसा है, तो वहां पे मैंने वर्क किया, इस चीज को लेकर काउंसलिंग किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलती हैं अपने सपनों को देखने के लिए। और उन लोगों का सिर्फ पिंजरा चेंज होता है, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जाती हैं, अपना पंख फैलाकर उड़ नहीं पाती हैं। आई रिस्पेक्ट योर ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये सारे ऑब्जर्वेशन केवल ऑब्जर्वेशन ना रहे, हमें कुछ तो काम भी करना चाहिए। ये जो टीचर है ना एग्जाम सेंटर्ड केवल सिखा रहे हैं, ऐसे हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं चाहिए। केवल हमारा असेसमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें यही सिखाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज 12 मार्क के लिए है। अरे पूरी जिंदगी भी हम पढ़े तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज हम समझने के लिए हमारी जो आईक्यू है वो कम है। हम उनको, ज्ञानेश्वर महाराज 4 मार्क के लिए है, संत तुकाराम महाराज 5 मार्क के लिए। Who are we to decide their contribution in the marks? And who are the teachers who is going to teach us that great personalities in terms of marks? तो हमारी टीचिंग भी उसी तरह से नहीं चाहिए। जैसे आप प्रयास कर रहे हैं वैसे उनसे इनफॉर्मल ज्यादा से ज्यादा बातें करके, उनसे कुछ और चीजें जानकर, उन्हें अलग अलग क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज है वो बताना जरूरी है। Coming to the next point, I would like to discuss about the use of technology. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात कही गई है कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जरूरी है इन आवर असेसमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि असेसमेंट में अभी किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बता सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स मुझे बताइए कि जहां इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है असेसमेंट में। Sir, please repeat. Please tell me any example where you will find that there is an integration of technology in assessment. असेसमेंट हो रही है, वहां टेक्नोलॉजी का कहीं इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये जो आपका एफडीपी है उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कैसे हुआ? बाय ऑनलाइन सर। Yes. ओके। अभी आपको कोई फीडबैक वगैरह लेते होंगे हर सेशन होने के बाद, वो आप किस तरह से दे रहे हैं? यस सर, ऑनलाइन सर, थ्रू गूगल फॉर्म सर्वर के माध्यम से। भावना गौतम जी ने कहा, आप उत्तम जी कह रहे हैं कि गूगल फॉर्म से दे रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द असेसमेंट ना। Yes, sir. आप असेस कर रहे हैं, आप फीडबैक दे रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये एक क्लियर बात कही गई है कि देयर शुड बी अ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट, and it's a journey not destination, because day by day technology is going to increase a lot. You all are aware about it. Let me ask you a simple question. हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हमें जानकारी चाहिए तो हम कहाँ ढूंढते हैं? गूगल सर। गूगल। इंटरनेट में सर।
इंटरनेट पे इंटरनेट जो सर्च इंजिन है वहां आप ढूंढते हैं। यस। और सबसे फेवरेट सर्च इंजिन है गूगल। गूगल पे कितनी जानकारी है? सर चैट जीपीटी पे ढूंढते हैं। ओके, चैट जीपीटी भी है। अभी ग्रॉक आया सर, लेटेस्ट वर्जन। ओके, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि गूगल पे सारी जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि टोटल अवेलेबल जानकारी में से कितनी जानकारी गूगल पे है? कोई अप्रोक्सीमेटली मुझे नंबर बताइए। आई थिंक 73% सर। 73%। उससे कुछ कम? 60। उससे थोड़ा सा कम? 40 to 50। उससे थोड़ा कम? 25 to 30। उससे थोड़ा कम? 15 to 20 लास्ट सर। उससे भी थोड़ा कम? 5%। उससे 1% कम? 4%। Only 4% information is available on Google. Rest of the data is on dark web. Those who are interested in technology, they must check the iceberg, that is Google. बस सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, डार्क वेब तो इलीगल है ना सर? हाँ, डार्क वेब इलीगल है, लेकिन आप में से कितने सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारी कितनी जानकारी डार्क वेब पे है। क्योंकि Yes, हम sir. कोई भी हम ऐप जब डाउनलोड करते हैं तो कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय आप सभी चीजें को परमिशन देते हैं कि चलिए कॉन्टैक्ट एक्सेस Yes, करना sir. चाहते हैं, एग्री। आपके कॉल रिकॉर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं, एग्री। ये डेटा है कहाँ? डार्क वेब में सर। n number of data is available on dark web only, and only 4% data is available on Google. और गूगल तो एक आइसबर्ग जैसा है, बाकी तो डेटा नीचे है सारा। अगर ऐसे सिचुएशन में हमें जानना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वांटम कंप्यूटर? No sir, sorry sir. If you do not have the idea about the quantum computer, I would like to suggest you all just go through the NASA's website. They are developing the quantum computer. Our computer system is working in the binary system, 0 and 1. You all are aware about it. But that system is working into the 10 digits. Just imagine what will happen when that quantum computer will get into the hands of that people who would like to exploit you, who would like to use that data for collecting money. आप कितने बार ऐसे चीजें देख रहे हैं कि आप सभी को पता है कि सारी जो ये डेटा है, ये डेटा का किस तरह से मिसयूज हो रहा है। You all are aware that n number of cases are there day by day related to the cyber crimes. अगर ये सारी चीजें हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे करना है। इसीलिए As for example, Truecaller sir. Truecaller इज ये तो कोई इतना बड़ा स्कैम ही नहीं है, इससे बड़े स्कैम है। आप सभी को अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि आपका लाइट बिल नहीं भरा है तो आपको न्यूज क्यूआर कोड भेजा जा रहा है, सारा डेटा आपका जा रहा है। डेटा जाने के बाद बैंक अकाउंट भी आपका जीरो हो रहा है। उसी के बाद आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट के कितने केसेस आपने देखे होंगे। अच्छे जो पढ़े लिखे इंसान है डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन चुके हैं। एन नंबर ऑफ साइबर रिलेटेड क्राइम्स आर देयर। इसीलिए हमें अवेयर रहना है, और अवेयर रहने के लिए क्या करना है? वी नीड टू इंटीग्रेट एआई एंड एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी लोग जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आपने कोई एक चीज सर्च की, आपने कोई भी आपके सर्च इंजन में आपने आज सर्च किया कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, मुझे एसी लेना है, या मैंने ऐसे ही सर्च किया कि मुझे हमारे मित्र संदीप पाटिल जी के यहाँ वर्धा में मुझे मिलने जाना है, तो मैं नागपुर का यहाँ से फ्लाइट का टिकट अगर चेक करूं, अगर मैं कोई भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल में ओपन करूं तो मुझे उसकी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। क्यों ऐसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ After एआई। few minutes sir. बिकॉज ऑफ एआई। तो एआई का इतना इंटीग्रेशन हुआ है तो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट द सेम टाइम असेसमेंट में भी एआई के बारे में सोचना जरूरी है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि असेसमेंट में आप यूनिवर्सिटी की कोई भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल देखिए, एडमिशन के लिए असेसमेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, असेसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इन फ्यूचर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू दी असेसमेंट, क्योंकि सारे बच्चे अभी चैट जीपीटी के पीछे पड़े हैं।
लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए कि जो आपका जो डेटा है वो चैट का है या आपका खुद का है, वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन कमिंग डेज. As a teacher, we need to be familiar about the various tools which are available for online assessment. You can go through the Kahoot. At the same time, you can explore the some tools which will help you for integrating it for the purpose of assessment. Today, it is not expected that I should discuss in detail what are the online tools available and how we are going to integrate it. Instead of that, let's move towards this next important point, that is holistic assessment. तो एक्चुअली होलिस्टिक असेसमेंट का मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि असेसमेंट जो होनी चाहिए वो होलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए. यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आप सभी लोगों ने वो मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स. वहां जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रैंचो को फर्स्ट रो में बिठाया जाता है और रिहान और दूसरा कौन था? फरहान सर. फरहान और राजू रस्तोगी, उनको पीछे बिठाया जाता है और उनको क्या कहा जाता है? एज पर बाय रैंक बैठाया जाता है सर फोटो सेशन के टाइम. और उस समय ये कहा जाता है कि हम हमारा ब्लड टेस्ट भी करते हैं तो ऐसे सभी जगह पे हमारा पोस्टर नहीं लगाते और रिपोर्ट हम डिस्प्ले नहीं करते. लेकिन हमारा असेसमेंट क्या हो रहा है पता है? टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर्स, नॉट द वीकनेस. लेकिन आज के हमारे असेसमेंट में क्या हो रहा है? हमारे वीकनेस दिखाई दिए जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट में से आपको बताया जा रहा है कि अच्छा आपको साइंस में बहुत कम मार्क्स है, आपको इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स है. हमारी असेसमेंट होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ना कि वीकनेस दिखाने के लिए. इससे रिलेटेड मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. जिसको पॉसिबल है वो महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक एक पिंपरी चिंचवड करके एरिया है. वहां पद्मश्री गिरीश जी प्रभु ने एक स्कूल चलाते हैं. वो जो स्कूल है, जो पिछड़े समुदाय के बच्चे हैं उन सभी को वो एक साथ लेकर वहां पढ़ाते हैं. और उनके असेसमेंट बुकलेट जो है वो बुकलेट 40 पेज की है. हमें तो असेसमेंट दिखाई दिया जाता है 1 पेज पे, उसमें रिमार्क्स दिए जाते हैं, उसमें हमें ये कहा जाता है कि इतने मार्क्स है उतने मार्क्स है, केवल ये आपका रहा आपका साल भर का परफॉर्मेंस. टू बी ऑनेस्ट, प्लीज टेल मी, इज इट पॉसिबल टू असेस एनी लर्नर within a 1 page? Can we assess particularly? Is it possible? No sir, absolutely not. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी तक वही चीजें स्वीकार कर रहे हैं, अभी तक उसी के पीछे जा रहे हैं. We are following that path only, where we are going to assess our students on the basis of their 1 page summary. और मैंने आपसे कहा है वो 1 पेज ही है, और उस पेज को जब अहंकार जुड़ जाता है तो वो डिग्री बन जाती है. तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन होगा कि उसे अहंकार ना बनाइए. उसे ये मत बनाइए कि मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतनी पढ़ी हूं, मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स है. पहले आप देखते थे कि घर में वो डिग्री सर्टिफिकेट भी फ्रेम करके लगाई जाती थी. लेकिन आज हम जानते हैं कि ओके आपके पास डिग्री है, बट व्हाट अबाउट द नॉलेज, व्हाट अबाउट द विजडम, ये आपके पास है या नहीं? और ये पता चलने के लिए असेसमेंट होना चाहिए, वो होलिस्टिक होना चाहिए. इसीलिए कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. ये केवल ऐसे नहीं होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बच्चा बिल्कुल किसी के साथ मिलता नहीं है, बिल्कुल किसी के साथ बात नहीं करता है, किसी को हेल्प नहीं करता है, सोशल कुछ, तो आप कहेंगे कि वाह बच्चा कितना होशियार है. इज इट अ रियल कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस? इज इट? है क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है कि बच्चे का? Am I audible? No. Yes sir. Okay. So in between, try to respond me so that I can understand that I'm not alone here, because I'm on different screen right now. So हमारी असेसमेंट उसी तरह से होनी चाहिए कि जहां कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आ सके, उसी के साथ होल स्टूडेंट इन इवैल्यूएशन सिस्टम. ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसका केवल कॉग्निटिव डोमेन देखना है, उसका साइकोमोटर डोमेन देखना है, या उसका अफेक्टिव डोमेन देखना है. ये केवल नाम के लिए हमने वो डोमेन बनाई है. ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन की डेवलपमेंट. ये हमारे सुविधा के लिए हमने बनाया है, ये नहीं होना चाहिए. असेसमेंट में एकेडमिक स्किल्स के साथ
आपके स्किल्स कौन से डेवलप हुए हैं, आप में कुछ वैल्यूज है या नहीं। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा, हमें वैल्यू के बारे में भी बात करनी है। हम इंजीनियर निर्माण करेंगे, हम डॉक्टर निर्माण करेंगे, हम उद्योजक निर्माण करेंगे, उसमें अगर वैल्यू नहीं तो किस काम के है। 2047 में हम विकसित भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु कौन बनाएंगे? आप और मेरे जैसे टीचर ही बना पाएंगे, और उसके लिए हमें वैल्यूज भी असेसमेंट करनी जरूरी है। और ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई। और इसी के साथ मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ये नहीं देखना है कि केवल पहले ऐसे हो रहा था कि एक विषय में उसकी रुचि नहीं है, उसमें वो फेल हो रहा है तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। अभी ओईसी आई है, वर्टिकल्स आप सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग वर्टिकल्स आई है। अभी महाराष्ट्र में आरडी कुलकर्णी कमेटी ने वर्टिकल्स दी है। आप तो बहुत सारे अलग अलग राज्य से भी होंगे या महाराष्ट्र में से भी बहुत सारे टीचर्स होंगे, आप विद्वान होंगे, आपको भी पता है वर्टिकल्स। और वो वर्टिकल्स में सबसे अच्छी बात क्या है? ओईसी, ओपन इलेक्टिव कोर्स। वहां अपेक्षित क्या है? आप जिस डोमेन में, जिस फैकल्टी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू नीड टू अर्न ओईसी क्रेडिट्स आउट ऑफ दैट फैकल्टी और आउट ऑफ दैट स्ट्रीम और आउट ऑफ दैट सब्जेक्ट। आप अगर बीएड कर रहे हैं, आप अगर एमएड कर रहे हैं, बीएड करते समय आपको ओईसी से जो क्रेडिट्स लेने हैं आउट ऑफ द एजुकेशन फैकल्टी लेने हैं। इससे बच्चों को अपने, जो हम कह रहे थे कि जो एमबीबीएस कर रही बच्ची है हमारी, वो तो कथक उसको अगर पसंद है तो ओईसी कथक के भी ले सकती है। ये सारी चीजें आ चुकी है और ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताई गई है और वो हमें इंप्लीमेंट करनी है। तभी हम कहेंगे कि असेसमेंट जो है वो होलिस्टिक असेसमेंट हुई है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Am I audible? यस सर। हाँ, तो मुझे बताइए, क्या आपको इस दो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एनी गेस? सर पिक्चर इज नॉट विजिबल। Picture is not visible. Sir, picture is not visible. Is it visible now? Yes, sir. Visible. Yes, I got it. Okay. So what you observe in this picture? Okay. Let me tell you. हेलो सर। हाँ, yes. मीरा सर जी बोलिए। सर इसमें दो पिक्चर है जिसमें एक एंजॉयफुल मैन दिख रहा है और एक व्यक्ति जो है वो फुल स्ट्रेस में है। आप बहुत ही पॉजिटिव है मीरा जी, दोनों भी बहुत स्ट्रेस में है एक्चुअली। देखिए, ये जो बड़ा सूट बूट पहन के जो खड़ा है, उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और सबसे बड़ा विचार आ रहा है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एमए, एमएड, सेट, नेट, पीएचडी विद इन ब्रैकेट 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें हैं। और मैं जब बाहर सब्जी लेने जाता हूँ ना, तो हिसाब करते समय वो जो अनपढ़ मेरी बहन है वो अच्छे से हिसाब कर पा रही है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। What is mean by that education? Is it called holistic development? यस सर। दूसरा देखिए, असली जीवन में वो पानी में डूब रहा है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव और सिंबॉलिक पिक्चर। जीवन में जितनी चुनौती आ रही है उसमें वो डूब रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इट, हाउ टू गिव द प्रॉपर रिएक्शन टू द एक्शन, ये नहीं पता चल रहा है। हम क्या करते हैं, हमें यही बात समझ में नहीं आ रही कि हमें किस तरह से समाज में रहना है।
हमें यही बात समझ में नहीं आ रहा है, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं आपके पास, आपके क्लास में। आप एग्जांपल ले लीजिए कि कल ही एग्जांपल ले लीजिए, जब आपको समय मिले तब, अभी छुट्टियां होगी, क्लास में पूछिए कि हर किसी को अपने बारे में केवल 5 मिनट बोलने के लिए कहिए। देखिए हमारे ग्रेजुएशन होने के बाद भी बच्चे खुद के बारे में बात करना भी नहीं जानते हैं, फिर हम होलिस्टिक असेसमेंट की बात कैसे कर रहे हैं? और वो बच्चे तो वो एग्जाम में बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आपका असेसमेंट होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। केवल मार्क्स अच्छे इसका मतलब ये नहीं कि होलिस्टिक असेसमेंट हो गया। वी नीड टू गो बियॉन्ड द मार्क्स, वी नीड टू असेस देयर वैल्यूज, वी नीड टू असेस देयर स्किल्स, वी नीड टू असेस स्टूडेंट एज अ होल। ये नहीं देखना है कि केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट aspect which is discussed in the National Education Policy 2020, that is flexible assessment. The more importance is given to the flexible assessment. Flexible assessment means what? Variety of methods and formats. You all are aware about the rubrics. आप सभी लोग rubrics के बारे में जानते हैं। आपको variety of method चाहिए assessment की। आपके पास आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग भी जानते हैं। प्रधानाचार्य मैडम, यहाँ ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की ही फैकल्टी है या और भी है? नो सर, एजुकेशन की फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं, बीएड के स्टूडेंट ट्रेनीज भी हैं सर। Great. So you all are aware about the variety of methods and formats related to assessment. Methods कौन सी चाहिए? हमेशा केवल रिटन एग्जाम ही नहीं लेनी चाहिए, हमेशा केवल आपको प्रैक्टिकल्स देकर वो कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं कहनी चाहिए, हमें कुछ रूब्रिक्स भी बतानी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन दे दिया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसका असेसमेंट कैसे करोगे? उसके लिए कुछ रूब्रिक्स आप बना रहे हो या नहीं, इसके बारे में सोचिए। आप कोई भी एक्टिविटी दे रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम्स यू नीड टू डिजाइन योर formats for assessment, you need to design your rubrics for the same. So you need to think seriously, along with the learning objectives, what are the learning outcomes and how you are going to achieve that learning outcomes, because we need to achieve that learning outcomes. Only after that it is possible to correlate that learning outcomes with the, we need to map that learning outcomes with the course outcomes and then program outcomes. For mapping all that things, there should be a variety of formats which we call rubrics for the same. At the same time range of strategies होनी चाहिए, हर बार कोई एक ही तरह से असेसमेंट नहीं लेना चाहिए। कभी आपने ऐसे, मुझे कुछ इनोवेटिव असेसमेंट के कुछ एग्जांपल्स मिल सकते हैं क्या आपसे? डू यू हैव एनी एग्जांपल्स ऑफ इनोवेटिव असेसमेंट? अच्छा, मैंने ऐसे असेसमेंट किया है, या मेरे टीचर ने ऐसे असेसमेंट किया था, या मैं ऐसे असेसमेंट करना चाहती हूँ। Is there any example of innovative assessment? No sir. अरे कोई भी हो सकता है ना। जैसे आज हमारा सेशन हुआ असेसमेंट इन लाइन विथ एनईपी 2020, और सेशन होने के बाद अगर आपको मैडम ने कहा कि आप सभी को आज का जो सेशन हुआ है उसके बारे में एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, और जो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रिपेयर करेगा उसे तो कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि हाँ, ही ट्राइड और सी ट्राइड हिज और हर बेस्ट। तो एक असेसमेंट हो सकती है। एमसीक्यूज प्रिपेयर करना कोई ऐसी बात नहीं है कि बिना पढ़े आप कर सकते हो। विदाउट टेकिंग एआई's help, you need to prepare it. Otherwise, you are going to upload all the notes or all the screenshots which you have taken into the ChatGPT, and you are going to ask them on the basis of this prepare the MCQs. No, not like this. In your classroom. Kindly conclude the session. Hello, excuse me. Sir, you were requested to conclude the session. Yes. It's near about 9:50. So we all are need to think about the flexible assessment. At the same time, we need to think about the continuous comprehensive evaluation. You all are aware about this. Then most important, assessing knowledge, skills, attitudes, and values. All these things are included within the National Education Policy 2020. And yes, most important thing, 360-degree assessment.
Within that, it is expected that peer assessment should be there, rubrics and criteria based assessment should be there, assessment from teachers as well as parents. It is expected to assess the students from parents also, and 360-degree feedback surveys, which will help us to improve our quality. Portfolio is introduced there. We can motivate our students to prepare their portfolios. E-portfolios are there. And at the same time, instead of assessing ourselves from others, let's assess from ourselves also. So self-assessment is there. So these are the some things which are mentioned in the National Education Policy 2020 in respect to assessment. Before concluding the session, I would like to show you one picture. What you observe in this picture? What you सर observe ये in this? सर एक मुर्गी है हाँ अंडे देने वाली, हाँ और वो मतलब उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है कि मैं इसे खाऊंगा या फिर मैं इसे काटूं। ये हमने बहुत पुरानी एक कहानी सुनी है कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। हाँ हाँ हाँ, Yes, sir. वही है सोने की मुर्गी, सोने अभी की अंडे देने वाली मुर्गी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी उसकी ये 3rd जनरेशन है, इसीलिए अभी महंगाई कितनी बड़ी है, सोना तो 1 लाख के आसपास गया है, तो अभी वो मुर्गी भी चांदी का अंडा दे रही है, इसलिए वो सफेद है। तो वो बंदा क्या सोच रहा है वही है, लेकिन वो बदल गई, लेकिन हम नहीं बदले। उसके मन में क्या विचार आ रहा है, एक एक अंडा रोज लेने से अच्छा है कि एक बार ही काटूं तो सारे अंडे मिल जाएंगे। फिर क्या होता है, रिग्रेट, एंड रिग्रेट इज कुछ भी हाथ नहीं आता। रिग्रेट इज नथिंग बट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसके बाद जो गई बात, उसके बाद कुछ कहने में मतलब नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप भी अध्ययन अध्यापन करते समय, असेसमेंट करते समय रेडीमेड नोट्स देके बच्चों को केवल इसी फॉर्मेट में लिखना है, केवल ऐसे ही करना है जो आपको कहा गया है, मैंने जो कहा गया यही ब्रह्म वाक्य है। ये ऐसे विधान ना करते हुए उनके होलिस्टिक असेसमेंट के बारे में सोचिए, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दे दीजिए, तभी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बातें, जो अपेक्षा व्यक्त की है, वो हम साध्य कर पाएंगे। फिर से एक बार यहाँ मुझे आपकी प्रधानाचार्य मैडम ने एक सभी के साथ डिस्कशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे दी। आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर वसुंधरा कुमारी जी। Thank Again, you I would so like much, to sir. thank you. Welcome, My, most welcome, sir. again, I would like to thank you, my friend Dr. Sandeep Patil, and all other participants for having a good kind of interaction on the important topic, that is assessment in line with NEP 2020. Thank you, one and all. Thank you, sir. If you have any kind of question or feedback, you are most welcome. Now, I would like to hand over the session to Dr. Sandeep Patil, sir, Assistant Professor of Department of Education, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Visvyadhyalay, Wardha, Maharashtra. गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली ये कोई समय नहीं है कि आपसे कोई वार्तालाप की जाए, बट देन आल्सो आई वुड लाइक टू अगेन कांग्रेचुलेट डॉक्टर चौहान for deliberating upon a very important topic, that is assessment and evaluation in line with NEP 2020. Second, I would like to congratulate Dr. Vasundhara Kumari and her entire team for organizing this valuable FDP. इस FDP में भले ही पार्टिसिपेंट्स कम थे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में, शॉर्ट टर्म नोटिस पे ये ऑर्गेनाइज हुआ, बट देन आल्सो इट इज ए रियली सक्सेसफुल FDP, क्योंकि इस पे जो सेशंस कवर हुआ है और जिस तरीके के एक्सपर्ट्स ने अपने पुट्स दिए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। सो क्वांटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स डज नॉट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द सेशंस। इस गौतम बुद्ध कॉलेज ने इससे पहले जो वर्कशॉप्स लिए हैं, मोर देन 300 to 400 पार्टिसिपेंट्स FDP को इससे पहले भी आए थे। सो इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी। आशा करते कि इसके बाद वसुंधरा जी थोड़ा सा प्री प्लान होकर हम काम करेंगे और इससे बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे।
So congratulations, Dr. Sawan. I know you were too busy, but then also you gave justice to a very important topic and you said yes to this final call. Thank you so much on behalf of this college, Dr. Vasundhara Kumari. आप सभी प्रतिभागियों को जैसे गणेश सर ने कहा है कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, जो करना है अभी हम प्रैक्टिकली जो करेंगे वही अपने स्टूडेंट्स में उसका रिजल्ट दिखेगा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस विश्व गुरु की बात करते हैं, सपना देखते हैं, तो वो तो आसमान से टपक के नहीं होगा ना। इट हैज टू बी डन थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम। And if we want to change our country, transform our country, we need to transform our teaching learning processes and simultaneously our evaluation system also. So आप सभी से यही अपेक्षा है कि पूरे बदलाव की शुरुआत जो है, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जो है, वो अपने आप से होती है और अपने आप से ही आगे बढ़ेंगे। So thank you so much all of you for kindly listening and participating in this FDP. और थैंक यू ऑल। चलिए वसुंधरा जी, इट्स ओवर टू यू। Thank you so much, sir. A special thanks goes to you, sir, Sandeep Patil, sir. Anjali ma'am, next, please. Now it's time to read the report, and for report reading, I would like to call Dr. Vasundhara Kumari ma'am, Principal of Gautam Buddha Teachers Training College, Hazaribagh. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. 7 days faculty development program organized by Gautam Buddha Teachers Training College, Hazaribagh, NAAC accreditation grade B. Duration 26/5/2025 to 31/5/2025. Topic: Emerging scenario of Indian teacher education in the light of NEP 2020. About the program, the faculty development program organized by Gautam Buddha Teachers Training College, Hazaribagh, Jharkhand, focused on the transformation reform in teacher education as by the National Education Policy NEP 2020, recognized teacher as a backbone of the education system NEP 2020, emphasized the need for the rework and forward-looking teacher education framework. The FDP aimed to align faculty understanding with these new reforms and prepare for effective implementation and education institution. Objective of the course: familiarize the faculty with the key provision of NEP 2020, the critical analysis, the transformation in the domain of teacher education, to explore innovative and effective pedagogical strategy, to understand the role of regulatory body in implementing educational reforms, to develop frameworks for integrating vocational education, ethics, and life skill in teacher training, to encourage collaboration and institutional preparation among faculty members. Day-wise session overview. Day 1, 26/5/25, Dr. Amol Ubale addressed the use of AI in education, highlighting the integration of artificial intelligence to enhance teaching learning process and promote adaptive learning environment. Day 2, 27/5/25, Dr. Surendra Hayal presented on NEP 2020 for teacher education beyond borders, discussing a global outlook on teacher education reforms and India's positioning in the international education landscape. Day 3, 28/5/25, Dr. Pragat Singh
Garcha delivered a session on empowering teacher for digital age, emphasizing blended mode of teaching and learning and digital literacy among educators. Day 4, 29/5/25, Dr. Sandeep Patil sir focused on advanced teaching techno-pedagogy for Indian teacher education, stressing the need for technology professionally and pedagogical integrating in teacher training. Day 5, 35/25, Dr. Rekha Chauhan shared insight of design and development of MOOCs, enabling teachers to curate and deliver online courses to expand reach and assembling in education. And day 6 is today. Dr. Ganesh G. Chavan sir concluded the program with session on assessment in line with NAP 2020. Conclusion: the Faculty Development Program provides valuable insight into the evolving landscape of teacher education in India. With expert-led session on and focused discussion, it empowered participants to adopt and implement NAP 2020 effectively. The FDP also fostered academic collaboration, encouraged technological integration, and motivated faculty to drive reforms in the respective institution. Thank you so much to NCTE, UGC, Vinoba University, Hazaribagh, and Mr. Manoj Kumar, who is the Vice President of Gautam Buddha Teachers Training College, Mr. Mithilesh Kumar Mr. Sir, Secretary of Gautam Buddha Teachers Training College, and our all participants. Also, a special thanks goes to our respected Gopal Krishna Thakur sir and Dr. Sandeep Patil sir. Also, I would like to thanks the all keynote speakers and my all faculty members, SMT Anjali Madam, SMT Varsha Ma'am, Meera Ma'am, and technical partner who is absent here, Mr. Nandkishore Kumar. Also, I would like to thanks all faculty member and my dear participants. Ma'am, I hand over you. Thank you, ma'am. Very, very thank you to you. Now I would like to say Varsha ma'am to propose vote of thanks. अंजलि मैम, नेशनल एंथम के बाद सेशन को ये कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा और फीडबैक फॉर्म आप अपलोड कर दीजिएगा और एक बार पार्टिसिपेंट्स को बोल देंगे प्लीज फोटो सेशन के लिए आफ्टर वोट ऑफ थैंक्स. Okay, ma'am. Dear participants, very, very thank to you all because you all have contributed your precious time to avail this informative session of 7 days program related to faculty development. Also, I would